اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیکٹرز افیکٹنگ انڈسٹریلائزیشن ان انڈیا۔ ٹھیک، یعنی آج ہم ان فیکٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، یا آج ہم کچھ فیکٹرز کے بارے میں ڈسکس کریں گے جن فیکٹرز کی وجہ سے جو انڈسٹریلائزیشن ان انڈیا، یعنی ہندوستان میں جو انڈسٹریلائزیشن ہے، صنعت کاری جو ہے یا صنعت جو ہے ہندوستان میں، اس کے اوپر یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو فیکٹرز ہے، جو عوامل ہیں، کن عوامل کی وجہ سے ہندوستان میں انڈسٹریلائزیشن پر اثر پڑا، یعنی وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے جو انڈسٹریلائزیشن ہندوستان میں ہے وہ متاثر ہو گئی۔ اسی لیے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیکٹرز افیکٹنگ انڈسٹریلائزیشن ان انڈیا۔ ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ پروسیس آف انڈسٹریلائزیشن ہے، جس کو آپ صنعتی بھی بولتے ہو یا صنعت کاری بھی جس کو آپ بولتے ہو، یہ جو پروسیس ہے ہندوستان میں، یہ شروع ہو گئی برٹش پیریڈ میں ان 1850، یعنی 1850 میں جو پروسیس آف انڈسٹریلائزیشن ہے وہ ہندوستان میں شروع ہو گئی۔ اس وقت یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، یعنی ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو پروسیس آف انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ ہندوستان میں 1850 میں شروع ہو گئی۔ اس وقت یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، اس وقت یہاں پر برٹشرز کا دور تھا، اور اس کے بعد ان 1914 یعنی 1914 میں ہندوستان ہیڈ اسٹیبلشڈ ورلڈز لارجسٹ جوٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری، یعنی 1914 میں ہندوستان نے اسٹیبلش کی دنیا کی سب سے بڑی جوٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری، یعنی جوٹ کو تیار کرنے والی انڈسٹری اسٹیبلش ہو گئی 1940 میں، جو ساری دنیا میں لارجسٹ جوٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری مانی گئی۔ ٹھیک، تو پھر کیا ہوا؟ آفٹر دا انڈیپینڈنس، آزادی کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا 1947، ہندوستان جب آزاد ہوا، آزادی کے بعد جو انڈسٹریلائزیشن ہے، جو صنعت کاری جو ہے ہندوستان میں، ہیز گینڈ مومنٹم، انہوں نے ایک رفتار جس کو بولتے ہیں گین کی۔ یٹ انڈیا از لیگنگ بہائنڈ، یعنی ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہندوستان ہے وہ بہت پیچھے ہیں انڈسٹریلائزیشن میں۔ اگر ہم دوسرے ملکوں کی بات کریں گے، اگر ہم دوسرے ملکوں کے مقابلے میں دیکھیں گے تو ہندوستان ابھی بھی پیچھے ہے ساری دنیا میں اگر ہم دوسرے ملکوں کا موازنہ کریں گے ہندوستان کے ساتھ تو ہندوستان ابھی بھی پیچھے ہمیں نظر آتا ہے so far as industrialization is concerned۔ اگر ہم صنعت کاری کی بات کریں گے تو ہندوستان ابھی بھی پیچھے ہے۔ تو دیکھو پیارے بچوں، کچھ مین کازز ہے جو اس کے ریسپانسبل ہے کہ جو مطلب انڈسٹریلائزیشن ہے ہندوستان میں، اس کے اوپر مطلب کون سے ایسے عوامل ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں انڈسٹریلائزیشن متاثر ہو گئی۔ ٹھیک، تو دیکھو پیارے بچوں، جو یہ انڈسٹریلائزیشن میں کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، انڈسٹریلائزیشن میں کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے، روپیوں کی ضرورت ہوتی ہے، سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، یا کام چلانے کے لیے جو سرمایہ ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں گے تو اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے، ان انڈیا کیپٹل از شائی اینڈ دیٹ از ناٹ فورتھ کمنگ ٹو دا ڈیزائرڈ ایکسٹینٹ، یعنی اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے تو ہندوستان میں اتنا زیادہ کیپٹل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، تو اتنا زیادہ اس حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان شائی ہے۔ اس کیپٹل کے حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہندوستان ابھی بھی شائی ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ از ناٹ فورتھ کمنگ،
That is not forthcoming, जो forthcoming नहीं है, जिसको आप आइंदा बोलते हो, to the extent desired, यानी जो मतलूबा हद है उसको हासिल करने के लिए अभी भी जो हिंदुस्तान की जो कैपिटल है, हिंदुस्तान का जो सरमाया है, हिंदुस्तान के जो पैसे, हिंदुस्तान के जो रुपये हैं, वो भी अभी शाय है, वो अभी भी पीछे है, ठीक। और देयर कैन बी नो इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट कैपिटल, और हम सब ये जानते हैं कि सरमाए के बगैर, रुपयों के बगैर, काम चलाने के लिए जो सरमाया है उसके बगैर इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती, सनतकारी नहीं हो सकती, सनत नहीं चल सकती, ठीक। तो देखो प्यारे बच्चों, ये एक कॉज है, और दूसरा कॉज जो है वो है कैपिटल फॉर्मेशन इज अनअवॉइडेबल इन सो फार एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कंसर्न। जो एक कैपिटल फॉर्मेशन है ये अनअवॉइडेबल है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो अनअवॉइडेबल है, यानी कि हम यही कह सकते हैं ये लाजमी है, ये अटल है। कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो अनअवॉइडेबल है, यानी वो लाजमी है, वो अटल है, इसका होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। किसका? कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुस्तान में लोग जो है वो गरीब है, हिंदुस्तान के लोग जो है वो गरीब है, और जो हिंदुस्तान के लोग हैं दे हैव नो टैक्स पेइंग कैपेसिटी, यानी हिंदुस्तान के लोग जो हैं इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि ये टैक्स को पे कर सके, ये टैक्स को पे कर सके, ये टैक्स को पे कर सके, ठीक। और दोज हु कैन पे अवॉइड दियर पेमेंट। और हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस काबिल है कि वो टैक्स पे कर सकते हैं लेकिन वो अवॉइड करते हैं, और देयर इज नो कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो हम यही कह सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन इस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग जो है वो गरीब है, वो इस काबिल नहीं है कि वो टैक्स पे कर सकें, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो टैक्स पे कर सकते हैं लेकिन वो अवॉइड करते हैं, पेमेंट जो है वो उसके हिसाब से अवॉइड करते हैं, ठीक। और विदाउट कैपिटल फॉर्मेशन के बगैर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। और जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसका जो तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, कॉज देखेंगे, वो है जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जिसको आप सन्नती बोलते हो, जिसको आप सनतकारी बोलते हो, और जो ये सनतकारी है यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, यहाँ जो रैशनलाइजेशन जो है, जिसको आप कौमी सनत की अकली तंजीम बोलते हो, या इसको आप दलील से वजाहत करने का अमल भी बोलते हो, या अकली भी आप इसको बोलते हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, या रैशनलाइजेशन जो है, या मैकेनाइजेशन जो है, जिसको आप खुदकार साजी बोलते हो, या जिसको आप मशीन या मशीनी बनाने का अमल जिसको आप बोलते हो, यानी ये तीनों चीजें जो हैं ये एक दूसरे के साथ चलती हैं, ये एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलती हैं। यानी हम यही कह सकते हैं कि अगर एक मुल्क को तरक्की करना है तो ये तीन चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं, इनका एक दूसरे के साथ चलना बहुत जरूरी है, इनका एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर चलना बहुत जरूरी है, और ये तीनों चीजें होनी चाहिए अगर एक मुल्क को तरक्की करना है। अगर एक मुल्क के पास पैसों की जरूरत है तो इन तीन चीजों का एक दूसरे के साथ चलना बहुत जरूरी है। किन तीन चीजों का? इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, मैकेनाइजेशन। Or to begin with, mechanization is likely to bring some unemployment with it. To begin with, mechanization यानी मैकेनाइजेशन की शुरुआत से is likely to bring some unemployment with it, इसके साथ। Since in the country हमारे मुल्क में there is already undesirable unemployment, हमारे मुल्क में already unemployment है, यहाँ पर already हम unemployment देखते हैं, और therefore society is not prepared to introduce any such program। तो हम यही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हम unemployment देखते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने के साथ साथ टू बिगिन विथ मैकेनाइजेशन इज लाइकली, यानी मैकेनाइजेशन को शुरू करने के लिए इज लाइकली टू ब्रिंग अनएम्प्लॉयमेंट। हम तो मैकेनाइजेशन शुरू कर सकते थे लेकिन यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक।
हमारी सोसाइटी में। तो देयरफॉर सोसाइटी इज नॉट प्रिपेयर्ड, तो हम यही कह सकते हैं जो ये हमारी सोसाइटी है ये प्रिपेयर्ड नहीं है टू इंट्रोड्यूस एनी सच प्रोग्राम, कोई ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने के लिए विच कैन क्रिएट मोर अनएम्प्लॉयमेंट, जो ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं। फिर व्हेन मैकेनाइजेशन इज अपोजिट, जब मैकेनाइजेशन अपोजिट है, द होल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकम्स लो, तो क्या हो जाता है, जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो होल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो फिर लो हो जाती है, वो फिर कम हो जाती है। ठीक, तो ये भी एक काज बनता है रेस्पॉन्सिबल, जो जिसके जरिए जो हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन है उस पर एक बहुत जो मुतासिर होती हैं। ठीक, और जो हिंदुस्तान है, इंडिया हैज सफिशिएंट रॉ मटेरियल, हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है यहाँ पर काफी रॉ मटेरियल है मौजूद है। अगर हम हिंदुस्तान की जमीन की बात करेंगे, यहाँ की जो जमीन है, यहाँ पर अगर हम जमीन देखेंगे तो जमीन के हिसाब से हम यही समझते हैं कि यहाँ पर सफिशिएंट रॉ मटेरियल है, यहाँ पर सफिशिएंट रॉ मटेरियल है, लेकिन which can be useful for industrialization, यानी हमारा मुल्क जो है, हमारा हिंदुस्तान मुल्क जो है, यहाँ पर सफिशिएंट रॉ मटेरियल है, यहाँ पर काफी रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के, जो सनतकारी के लिए फायदेमंद हो सकता है और जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट बीइंग प्रॉपरली यूज्ड, लेकिन इसको प्रॉपरली यूज नहीं किया जाता है या नहीं किया जा सकता या नहीं करते हैं। ठीक, इसको प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं। इट इज लाइंग डीप इन द अर्थ, यानी ये जमीन के अंदर है, ये जमीन के अंदर रहता है। ठीक, डीप इन द अर्थ। इंडिया हैज नॉट एनफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, हिंदुस्तान के पास ना तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और ना टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, और उन टेक्निकल रिसोर्सों का फिर वो इस्तेमाल करते। अगर उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते, अगर हमारे मुल्क में टेक्निकल रिसोर्सेज होते और उन टेक्निकल रिसोर्सों का इस्तेमाल करके हम इस जमीन के अंदर उन रिसोर्सों का इस्तेमाल करते, फिर वहां पर रॉ मटेरियल निकालते और उस रॉ मटेरियल के साथ फिर उनको अच्छी तरीके से तैयार करते, तैयार करने के साथ फिर हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो अच्छी हो जाती। लेकिन हमारे पास अभी भी काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं है, जिन टेक्निकल रिसोर्सों की वजह से या जिन फाइनेंशियल के रिसोर्स की वजह से हम हमारी जो जमीन है इसको डिग आउट करते, हमारी जो जमीन है इसको डिग आउट करते और फिर हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी तरह से चलती। ठीक, और द रिजल्ट इज दैट होल प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकम्स वेरी लो, और इसकी वजह से भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत पीछे है, वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं है। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ये सोशल, ये समाजी तब्दीली लाती है, ये सबको पता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी होती है तब समाज में तब्दीली आती है, तब मुल्क में तब्दीली आती है। इसके साथ यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ समाज तब्दील होता है, समाज बदल जाता है, समाज में तरक्की हो जाती है, समाज में तरक्की हो जाती है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, so far such an atmosphere has not been created under which society gets ready to accept social change. यहाँ पर ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर है ही नहीं, यहाँ ऐसा हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते ही नहीं है जिसकी वजह से सोसाइटी जो है वो रेडी टू एक्सेप्ट सोशल चेंज, ताकि सोसाइटी जो हमारी है वो रेडी हो जाए सोशल चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। और सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज बाय एंड लार्ज, सोसाइटी जो है बाय एंड लार्ज, जिसको आप बहसती मजमूई बोलते हो, बाय एंड लार्ज जिसको आप बोलते हो, ऑर्थोडॉक्स, ये ऑर्थोडॉक्स है, ये मजहबी कट्टरपन इसमें देखने को मिलता है, या कट्टर ये है। एंड एवरी चेंज इज वेरी मच अपोजिट इन द बिगनिंग, हर एक चेंज जो है वो अपोजिट है बिगनिंग में। तो हम यही कह सकते हैं ऑल दीज फैक्टर्स जो है कंबाइंड टुगेदर विथ सम अदर फैक्टर्स हैव स्लोड डाउन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स की वजह से हमें यही पता चलता है कि जो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये बहुत स्लो है,
ہمارے ملک میں یہ بہت سلو ہے اینڈ دس از ناٹ لائکلی ٹو پک اٹ اپ ویری فاسٹ ان دا نیئر بائی future. So this is all about factors affecting industrialization in India. Thanks for today.